So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. तो आज हमने एक छोटा सा टीज़र लिया था जिसमें हमने सुमान के चाहने वाले और सुमान को इतना जो नहीं चाहते हैं वो लोग, उनकी रीडिंग ली थी। बहुत सारे कमेंट्स मैंने आज पढ़े जिसमें से मुझे कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे लगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतनी मैच्योर्ड एनर्जी रखते हो तो आप लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे इनकी जोड़ी को एक बार फिर वापस स्क्रीन पे लाने के लिए। ठीक है, काम तो दोनों साथ कर ही सकते हैं। लाइफ एक साथ बिताए ना बिताए वो तो बहुत दूर की बात है, और आजकल लाइफ बिताने के लिए आपको कोई रिलेशनशिप का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसा भी कई लोग मानते हैं, जो सही भी है अपने तरफ से, और ये आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन वो कमेंट्स अगर इतने पॉजिटिव है तो आप में से कुछ लोग वाकई में बहुत मैच्योर तरीके से सोचते हैं, और इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आप लोगों को कि आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। तो वो कौन से कमेंट्स है वो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें हिट किया है लव का मार्क, तो आप समझ जाओगे वो क्या है। सेकेंडली, मुझे ये लगता है कि सब अगर सुमान जोड़ी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये चाहे पर्सनली अपने लाइफ में एक दूसरे के साथ एज फ्रेंड्स रहें या फिर एज को एक्टर्स रहें, दोनों ही सूरत में इन दोनों के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है। पर्सनल लाइफ जो होती है, जिसको हम शादी बोलते हैं, ये बहुत दूर की बात है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इन लोगों की पर्सनल चॉइसेस हैं, पर्सनल पसंद है, इनकी पर्सनल सोच है, जो हमको इन दोनों की तरफ ही छोड़ देनी चाहिए। इसमें अपनी नाक घुसड़ना शायद ठीक नहीं रहेगा, राइट। तो आज की रीडिंग में हम ज़रूर ये देखेंगे कि ये एज अ जोड़ी, एज फ्रेंड्स कैसे रहेंगे, इनके सितारे क्या बोलते हैं इस सिलसिले में, क्या टैरो कार्ड्स सपोर्ट करती है ये एनर्जी, क्या टैरो कार्ड्स कहता है ऐसा कुछ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, क्या यहाँ पर सुमान के चाहने वाले या उतना नहीं चाहने वाले उनको जो हैं, क्या वो इनकी इस जर्नी में इनको जॉइंटली हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, राइट। सो यस, सो इन दिस reading we are going to be finding out whether these two can at least restart their journey again as friends, as good friends, or as good co-actors, because both of them, they have very good potential, very good actors, they have those skills in them, they are very talented. Yes, they can work individually, but there is nothing wrong in working as a team also. If they cannot be together personally in their lives as life partners or something like that, then at least they can be good friends and also good actors. So if given a chance by the universe or by anybody for that matter, if they get to work together, I think everybody under the sky should support them, irrespective of the fact whether they are Suman lovers or not Suman lovers. Okay, so this is what now we are going to be taking in today's reading. So today's reading we are going to be focusing mainly on how they are going to be working together, or how possible it can be, or what is that we should be doing in order to see that it becomes really possible and comfortable for them to work together, and how many of us really seriously believe that they should be working together, they should be good friends again, and lead their life normally and live in this world peacefully. See, marriage and all is a very serious thing. If they really want to marry or something,
then we should not be interfering in this matter, because this is a very personal matter. Leave this matter to themselves. Let them decide what is that they want to do in their lives. But when it comes to their friendship, or when it comes to working together, yes, we should jointly help them do this. Okay, so चलो रीडिंग शुरू करते हैं. और yes, there were few comments which I really liked very much. Those comments were really good, and that showed their maturity. And I seriously feel that if you guys seriously think in that manner, then definitely you guys will help these people reunite again. So चलो रीडिंग को अब शुरू करते हैं. तो पहले जैसे हम लोग शॉर्ट हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद टैरो से उसे डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे. सो इन द लास्ट रीडिंग, जो टीज़र वाली रीडिंग ली थी मैंने, उसमें कहा था कि मिररिंग वाली एनर्जी आई है. 4 ऑफ वॉन्ड्स जो मिरर करती हुई एनर्जी है. मिररिंग का मतलब क्या होता है? मिररिंग का मतलब ये होता है जैसे आप शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो आपको आप ही की सूरत दिखती है ना, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या मिरर कर रहे हो? आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स. आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, वो अगर मैनिफेस्ट करते हो बहुत जेन्युइन तरीके से, आप बहुत ऑनेस्टी से आप अगर उसको मैनिफेस्ट करते हो विथ प्योर सोल से, तो यूनिवर्स भी वही मिरर करती है. वो चीज़ आपको एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट करके उस चीज़ को वो उसने मिरर कर दिया, ऐसा वो कहती है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स उसको बहुत ही इनोसेंटली एब्जॉर्ब कर लेती है. यूनिवर्स अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेती, ना ही वो कोई किस्म का प्रिडिक्शन करती है. यूनिवर्स आपको वही देती है जो आप मैनिफेस्ट करते हो. तो जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपका वो कोरे वर्ड्स नहीं रहने चाहिए, वो आप सोलफुली कितना उसको फील करते हैं और उसमें कितनी ऑनेस्टी है, उस चीज़ को वो एब्जॉर्ब करेगी और उस चीज़ का ही रिफ्लेक्शन वो आपको देगी. तो आपका मैनिफेस्टेशन अगर वीक रहेगा तो यूनिवर्स को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो यूनिवर्स आपको वो नहीं दे पाएगी. आपको शायद बात समझिए जो मैं कह रही हूँ. तो आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो किसी का बुरा सोच के मत मैनिफेस्ट कीजिए वो चीज़ को, क्योंकि किसी के बुरे पर कुछ अच्छा पाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद यूनिवर्स नहीं करेगी वो. I hope I am very clear over here to all of you. So manifestation should be very pure. So when you are manifesting and all, you should manifest with a pure heart. So when you are manifesting something, you should keep in your mind that you are not manifesting that thing at the cost of somebody, at the cost of